which was much appreciated and released by Honorable Governor of Maharashtra. And her educational qualifications are so big: Masters in Chemistry, Masters in Industrial Psychology, Clinical Psychology, B.Ed from Mumbai University, Enterprise Management, IIT Delhi, certificate courses in Time Management, Stress Management, Export Management, Sales and Marketing, and even Reiki and Yoga also. Spiritual intelligence level under guidance of Dr. Richard, National Chairman of Transpersonal Psychology section of Australian Psychological Society, attended various conferences, events, International Psychology Conference, World Spiritual Confluence, Indian Public Library Movement, Stress Management, Impact of Atmospheric Pollution, Certified Master Trainer, Certified Lead Assessor, NSDC India, Shastra. Worked as research scientist in Inar Chemicals, Mumbai, R&D executive, worked as principal Horizon School, Pune, worked as PGT, DGT at various army schools and public schools, educational consultant,
Jain Publications, Delhi. Vice President, Training and Development, Vijayesh Foundation, Delhi. Working as freelance trainer, leadership development, soft skills since past 10 years. Conducted training program for many corporates, Garbare, L&T, Podar International, Air India, Delhi University Colleges, IITs, Delhi, Indian Institute for Company Secretaries and many more. She is really a fan of A to Z on this earth. Her paper on stress management has been published in Social Science International Journal. Kavya, Trisha and Kavaish are wonderful collection of poems written by her on lifetime and people we meet during our life journey. Her poems reflect her positive outlook and convey the clear admiration for a meaningful life. She has worked in various institutions, organizations, and her main purpose is to work for peace, harmony and humanity. Social venture Leading Lady, which is the perfect combination of passion and profession. She has conducted more than 7,500 workshops in past 15 years and successfully made an impact of more than 1 lakh individuals. Impact on more than 1 lakh individuals. She is constantly working for empowering students, parents and women through her inspirational workshops. Being an army officer's wife, she considers herself fortunate enough to get the opportunity to work for various noble causes all over India. Her work is appreciated by many eminent personalities from various fields and educational institutions. She is associated with women empowerment organizations across the globe. Recently, along with foreign delegates, she conducted a youth development workshop in one of the most reputed schools in Delhi and plans to conduct several more in times to come. It will surely broaden the vision and make students aware of the global opportunities in various fields. She has been felicitated with many awards at national and international level. She holds the honor of being one of the eminent international speakers at a conference for women entrepreneurs organized by the Global Trade Chamber, Florida, USA in March 2019. Felicitated at British Parliament in June 2019 also by Governor of Punjab. By reading only I was very tired, but I don't know madam, really you are great madam. Thank you very much. My God, writing 7,500 words will be difficult. She has taken 7,500 sessions. Imagine, we really need to put our hands together. And madam, you must have never come across anyone introducing you or engagement. But you are such a personality that somebody will be like that. And one thing, madam, I would just informally share. I see 2-3 students, in between. कौन है वो वाले मैडम? कौन मतलब ये वाले? Then somebody is explaining, हाँ नहीं ये वाले मैडम है. So this is you, and I thank Arya madam. When I went to her, मैम चीफ गेस्ट के लिए किनको बुलाएंगे? तो she's like, for this session, it should be Priya Samant ma'am. And when I went to Shagun madam, एकदम बराबर. So thank you so much. Yeah, so I now request our director, Dr. Suhasini Arya madam, to felicitate our chief guest, Mrs. Priya Samant madam, for the day, please. Put your hands together, everyone. मैडम का काम इतना है कि वो इतना लाउड होना चाहिए. एक और बार. Thank you, Arya madam. Editor-in-Chief, I've already mentioned, but I would like to again come up with that. Editor-in-Chief of News First Network, Om Prakash Ji Mishra. एक बार खाली उनको पूछने से, he is very much over here. And what is his answer? कि ये कॉलेज और इतना अच्छा काम और आर्या मैडम बुलाएंगे और हम हमारे कैमरा के साथ नहीं आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है. So we should really thank him to be here with us. Dr.
Dr. Suhasini Arya, Madam, to kindly deliver the inaugural address. Madam, please. I will give you the mic there. Our chief guest, Dr. Riya Sawant, Madam, Principal, Om Prakash Mishra ji, all the students and Madam लोग जो यहाँ बाहर से आए लेकिन ये प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं और इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, सबको विद्या कॉलेज की ओर से आप लोग का सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और today's day, you know, I feel very much honored on this occasion to speak because this is a unique certificate course we have done, value added course, which is really the need of the hour. Today, you all know that the things have changed, the lifestyle has changed, values are changing, धीरे धीरे with the technology सब कुछ बदलता जा रहा है, हमारी सोच बदलती जा रही है, हमारे वैल्यूज बदलते जा रहे हैं, है ना? तो इसकी बहुत ज़रूरत है और भगवद गीता, as you all people have done the course, and I would tell you that again and again, if you explore same story, you know, you will miss एक incidents लो, एक story लो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत सारी चीज़ें, okay? For example, I will tell you one this श्लोक कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे, ओके? कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आपको क्या सिखाता है? The students, जब आप when you take up the studies, ओके? पास होने के लिए मत पढ़ो। अगर आप पास होने के लिए पढ़ोगे तो आपका ज्ञान जो है कुछ नहीं होगा, 1%, हार्डली आधा % ज्ञान आपको मिलेगा। You take up the studies thinking that I should have a knowledge. I am doing BCom. I should have thorough knowledge of all the papers. I am going to, appear for the examination. I should have thorough knowledge. Then I should have a wide knowledge. Okay? So you will become something. Then you enter into the job market. You will find कि अरे हाँ मेरी तो वैल्यू है। आप यदि डिस्टिंक्शन करके जाओ 90% लेके जाओ, आपका गोल वही था कि हम पुराने पेपर लेके पढ़ते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है पढ़ लिया, मार्क्स आ गए हमारे, है ना? लेकिन हमारा नॉलेज क्या है? कम है, बहुत ही कम नॉलेज है। So बिना फल की चिंता किए बिना you start studying. I have to study the question paper. I have to study this also. I have to see that what is the product life cycle. I should go in detail. Product life cycle को और ज़्यादा तेजी से ज़्यादा वाइड नॉलेज मुझे लेना है ना? मार्केटिंग का भी, मार्केटिंग की फिलॉसफी क्या है और उसको मुझे कैसे करना है, ऐसे पूरा आजू बाजू घूम के देखो, केस स्टडीज पढ़ो तो यू विल गेन नॉलेज। ओके? सो कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? और दूसरा मुझे ये बोलना है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। ऐसा कहा जाता है जब अत्याचार बढ़ जाता है भगवान जन्म लेते हैं, अपने अंदर ही भगवान है ना? जब हम कुछ भी गलत करते जाएंगे, आज तो नहीं पकड़ांगे, मान लो कॉपी कर रहे हैं, आज तो नहीं पकड़ांगे, कल भी नहीं पकड़ांगे, किसी तरह से ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, पब्लिक एग्जाम में बैठे नहीं पकड़ांगे, चलो हमारी मेंटालिटी कैसी होगी? यू हैव नर्चर्ड दैट वैल्यू इन योर माइंड दैट आई हैव टू चीट। देन व्हेन यू बिकम, से फॉर एग्जांपल यू बिकेम द कलेक्टर, तो आपकी सोच भी सच्चाई के साथ नहीं रहेगी। मैं शॉर्टकट पे किस तरह से मैं पैसा कमाऊं, हाउ आई कैन ग्रो फर्दर बाय चीटिंग द अदर्स, ओके? तो ऐसा होगा, फिर एक दिन पकड़ा जाओगे तो फिर आपका ज्ञानोदय होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना था। अंडरस्टैंड? तो आई रिलेट लाइक दिस। तो इसी को कई तरह से आप सोच के देखो। वैसे ही भगवद गीता की हर एक स्टोरी आपको बहुत ज्ञान देगी। छोटी छोटी स्टोरीज यानी छोटी छोटी स्टोरी भी जो है इट विल गिव यू सो वेरी बिग वाइड नॉलेज इट विल गिव। ओके? एंड एज दर्शिका मैडम सेड दैट you will learn how you should lead the life. Okay? How you should lead the life. That lesson you get from the Bhagavad Gita. It is not a religious, it is not religion based. It is the life, how to lead a life. Art of living based, book it is.
Understand? तो मुझे बहुत अच्छा लगा. I am proud of you, all of you, that you all have done this course. You understood the importance of learning. Okay? So I congratulate all of you on this good occasion. And with these few words, I would like to conclude. And Madam is there with you. And Madam जो है जो भी इन्होंने पढ़ाई की, इनका गोल हमेशा यही रहा कि मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊं. तभी आपने देखा उनका CV इतना बड़ा है ना? तो हमेशा मुझे सब कुछ जानना है, ये यानी क्यूरियोसिटी आपको रहनी चाहिए और सच्चाई से आगे बढ़ना है. सच को फेस करो. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सच कड़वा होता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन वही आपको आगे बढ़ाता है. थैंक यू सो मच. Very much, Arya madam, and you are absolutely right, madam. Whenever we read Bhagavad Gita over and over again, so every time we get new lessons, new learnings. So we are not going to stop the journey here. So thank you very much, Arya madam, for this inaugural address. Now I would like to request our principal, Dr. Shagun Srivastava madam, to deliver the keynote address. Respected Arya madam, respected Priyaji, respected Om Mishraji, and my esteemed guests and other dignitaries present on the dais, faculties and my dear students. On this very auspicious occasion today, when we are concluding the value-added course on Jyotirgamaya, which had a very auspicious beginning on Gita Jayanti occasion, had its roots on the initiative which was taken by our management members, our authorities, who found it the right time and the right fortune to introduce it in our education system as a part of our value-added course. Basically, in line with the national education policy as well, which imbibes the Indian knowledge system and aims at transforming our education system into a vibrant knowledge society. We took a small step ahead towards this policy, education policy, and wanted to see how far it can spread its wings and how far we can imbibe values in our youth through this program. We all are naturally living our lives, and it's wrong to say that we can only be spiritual. We are definitely guided by materialistic pleasures. We are humans, and so sometimes the drive to achieve materialistic pleasures gain much more importance than human values. And it is here that we take a break for a second. We put on our thinking caps and we think that how should we achieve happiness? How should we achieve a balance between good and bad, moral and immoral, human, inhuman acts, and so on. Gita, the Holy Scripture, is a guiding light to this particular dilemma. And we all were exposed to this so well, so beautifully by our own Professor Dr. Darshika Karya and Dr. Ann Mamta Balwanti. She was also an associate member for this. And it was so beautifully carried, and I could get the feedback from the guests who attended the course and the students that they were really overwhelmed by this course, and that is where I got
a final happiness and success, and I was really, really happy that we have achieved what we really wanted to. We all are guided by tamas, rajas, and such other worldly pleasures which you all know and have been very beautifully explained by Dr. Darshika. In this confusion, we need to hold somebody's hand to take us to the right path, and that is nobody else but Bhagwan or Lord or God, as we call him. He acts as the good shepherd who guides the flock of sheep to the right direction, and we totally entrust our blind faith like the flock of sheep who follows the shepherd. We totally leave everything to him and to guide us as to what is right and wrong, and to lead us to the final path of salvation. So it is here that I would like to share what I feel personally as well, that we must just do what we feel is right, what we feel is honest, what is true, what is good for the society, and leave the rest to God. We are nobody to control the fruits, as Madam rightly said. We are no one to that. If we try thinking more than beyond that, we will become restless. We should know where to stop. We should know where to put a full stop. But we should know the path on which we should tread. So with this, I just would like to say a beautiful prayer, which I always used to say as a child in my home, with my parents, with my siblings, and that is Asto Ma Sadagamaya Tamsu Ma Jyotirgamaya Mrityur Ma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Tumev Mata Chapita Tumev Tumev Vidya Dravidam Tumev Tumev Sarvam Mamadeva Deva. Thank you so much. Yes, a true solution. So it was really wonderful. The keynote address was really enlightening. I thank you, Madam. And now we all are waiting for Priya, Madam. Yes, Madam, we can see the smile on the participant's face. So the stage, the floor, I know you are not going to be stationed here because I have attended your session. So ma'am, please. Thank you. Please accept my humble namaskar to all enlightened souls over here. आज मुझे पहली बार लग रहा है कि ये जो ऑडियंस है, आप उम्र में मुझसे छोटे हो, लेकिन आप जो है ना, ये तमसो ज्योतिर्गमय, आप अंधेरे से उजाले की ओर चल पड़े हो, और इतनी छोटी उम्र में। तो एक बार तालियां सब आप सब के लिए। Thank you for this wonderful opportunity. और मुझे बस बैठे बैठे जब मैं सब सुन रही थी, थोड़ा सा मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा कि आप ये जो चीज़ है ना, इतने जल्दी सबको नहीं मिलती। You all are so blessed. और ये आपके जिंदगी का एक बहुत प्यारा शगुन है। दर्शिका मैडम के प्रयास से आप लोग जीवन में एक ऐसी दिशा की ओर चल पड़े हो जिसमें आपके मैडम ने ओंकार आपके साथ जोड़ दिया, प्रिया है, ममता है, और सुहासिनी मैडम सुहास के मदद से आप लोग such a wonderful day in my life also. हम कहते हैं इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। भगवान ने कहा तू शिकायत करता है, तुझे मैं लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा दे देता हूँ।
और सच में ये जर्नी जो है ना अंधेरे से उजाले की ओर है। और जब आप लोग ये करते हो तो आज मैं आपको मतलब हम लोग गायत्री मंत्र से भी एक बार दोहरा के हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है। गायत्री मंत्र ये पूरा सृष्टि का परमात्मा का तेज, उसको हम लोग याद करके हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आप बोलोगे? यस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। जय कृष्ण। यस, जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पता है गीता में आपने सब अध्याय तो पढ़े, कितने श्लोक है इसमें? 700 और कितने अध्याय में आपने सबने पढ़ लिया ये? एक सवाल पूछती हूँ, किसी के दिमाग में आया कि नहीं मुझे पता नहीं, ये गीता जो भगवान किसने किसको कहा? श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा है ना। कब कहा? कब बताइए? कुरुक्षेत्र में, महाभारत में। बराबर। कुरुक्षेत्र मतलब क्या था? रणभूमि, युद्ध भूमि। मतलब वहां पे इतनी सारी सेना, इतने सारे लोग, इतने सारे शस्त्र लेके, कब बताया होगा? आपको पढ़ने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो इतना उन्होंने कब बताया होगा? एक पर कब बताया होगा? ये तो इतना सारा चल रहा है। How he could concentrate on what he is saying? How Arjun could concentrate what he is saying? Because there was so much happening around. कभी सोचा आपने? Yes, बोलो। समय का गति बंद कर दिया। Yes. It was a timeless moment. Timeless. समय को रोक दिया था। आपने वो महाभारत देखा है ना? मैं समय हूँ। हरीश तिवारी जी समय को ही रोक दिया था, तभी वो मेडिटेशन से नो मेडिटेशन की शुरुआत वहां से हुई। टाइमलेसनेस मतलब जो मैं कह रहा हूँ और जो सुन रहा है मुझको, वो समय के दायरे से बाहर चले गए। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ इस बात का उनको होश नहीं, क्योंकि होश उनका फोकस, उन्होंने जो चीज उनकी काम पे थी उस पे की, उस पे रखा था। सो ये जो छोटी छोटी वाक्याएं है ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। गीता का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। और अगर सबसे मुझे बढ़िया जो समझ में आया जीवन का अर्थ, कि जीवन में दो साथी ऐसे होने चाहिए, एक कृष्ण के समान, एक कर्ण के समान। कृष्ण मतलब क्या? जो अगर आपके साथ हो तो आपकी जीत पक्की है। और कर्ण उसने लड़ाई नहीं करी, मतलब कृष्ण के जैसा साथी हो जो लड़ेगा फिर भी आपकी जीत पक्की है। और एक साथी ऐसा हो कर्ण के जैसा, जिसको हार सामने नजर आ रही है फिर भी वो साथ नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल चाहिए। और गीता का हर एक अध्याय आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। क्या क्या सीखा आप लोगों ने? क्या क्या सोचा आपने? क्या मैं पूछ सकती हूँ? Yes, I want. What were your learnings? What were your learnings? लीडर में कैसे
चाहिए। वेरी गुड। यस, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज ये कॉलेज के बच्चे बोलते हैं ये गीता हमको किस लिए चाहिए। हमारे पास टाइम है, ये गीता योग जो भी है भजन कीर्तन सत्संग ये बाद में के लिए नहीं। मैडम ने बिल्कुल सही कहा। लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स। गीता से अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे सीखी? हम अगर किसी से अगर अपना हम किसी को सम्मान दे, सामने वाला भी हमको सम्मान देता है। ये बात आपने सीखी। सही कहा आपने। पता है क्या, जो जोड़ता है उसको मान मिलता है, जो जोड़ता है उसको मान मिलता है, जो तोड़ता है उसको अपमान मिलता है, और जो खुशियां बांटता है उसको सम्मान मिलता है। तो आपकी वाणी ऐसी चाहिए कि जो दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके। वेरी गुड। और क्या सीखा? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखा? जैसे कि हम लोग टाइम हमारे पास सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, पर 24 घंटा मिस हमारे पास 24 घंटा ही होते हैं। जैसे कि आप सभी जो हमसे जो बड़े होते हैं उनके पास भी 24 घंटा ही होता है, और हम स्टूडेंट्स के पास भी 24 घंटा ही होता है। पर जैसे क्लास में बोलते हैं सब टीचर पढ़ाते हैं पर टॉपर एक ही नहीं करता है। उससे हम मतलब भगवद गीता से शॉर्टली में सीखी टाइम मैनेजमेंट करने का कि 24 घंटा होता है, उसके अंदर जो पहला हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसको पहले प्रेफरेंस में देकर उसको कंप्लीट करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे देना चाहिए, और जो मतलब जिससे हम न करने पर हमारा काम चल सके उसको लास्ट में देना चाहिए। इससे हम लोग मतलब कम समय में ज़्यादा गेन कर सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या नाम है आपका? नीति सत्संग। वेरी गुड। नीति के लिए जोरदार ताली। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जिंदगी में वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग, आपका क्या नाम है बेटा? नितिन जसवाल। नितिन नितिन नितिन। ये नितिन। वेरी गुड। सो नितिन आपकी एज कितनी है बेटा? 18। आपकी कितनी है? 17। आपकी कितनी है बेटा? 18। आपकी कितनी है? 18 तो आपने मुझे 18 सेकंड पहले बताई थी। यहाँ बैठे बैठे आपके मेरे हम सबके जिंदगी से 18 सेकंड, और जब 18 सेकंड की बात करी 20 सेकंड बैठे बैठे यहाँ पे निकल गए। वक्त की कीमत इसलिए है क्योंकि हर जो सेकंड है, हर एक सेकंड की अहमियत है, क्योंकि वक्त आपकी जिंदगी की ऐसी चीज है जो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। सो जो आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, टाइम को मनी भी कहते हैं। क्यों मनी कहते हैं? बिकॉज इन्वेस्ट करो तो पैसा बढ़ता है। सो टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करो तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी बहुत निखरती है, इसलिए उसको टाइम इज मनी कहते हैं। सो वक्त आपको बहुत अच्छा मिला है। मैम ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत करा है। आर्या मैडम को मैं काफी टाइम से जानती हूँ। शी इज कंसिस्टेंटली वर्किंग फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी आई है। And I feel so blessed to connected with her and to have her blessings. ये मैडम ने जो पढ़ के दिखा ना, ये मेरा कुछ भी नहीं है। It is all because of the people which I met throughout my life. ये उनकी बदौलत में हूँ। And to have people like her, ये जो leadership is like this. Who is leader? Leader is not the one who has maximum followers. No, leader is the one who makes more leaders. And I feel absolutely blessed. And every time I meet her, there is something I take from her. There is new learning every time. And जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी ऊर्जा है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जरूरी नहीं मैं डेली बेसिस पे उनको इंटरेक्ट करूँ, but she holds a very special place in my life and in my heart. Because हम हर एक से सीखते हैं, हर एक से सीखते हैं। और आपकी ग्रोथ तभी होती है जब आप वो सीखने का, if you are lifelong student, only then you can grow. तो मराठी मध्ये म्हणतात ना, थांबला तो संपला आहे तो कोणी बरं थे
थांबला तो संपला. आणि आपण म्हणतो चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट थिंग. आई से ग्रोथ इज ओनली द कॉन्स्टेंट थिंग. ग्रोथ मतलब कि या तो आगे जा रहे हो या तो अपवर्ड ग्रोथ या डाउनवर्ड ग्रोथ. ये हमारे पास चॉइस है. So you people have chosen to be on the right track. You people have chosen to devote your time for beautiful learnings. मैं भी गीता से हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा इसके ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उस जर्नी पे चल पड़े हो. वो पिक्चर का होता है ना, पहले बताओ तो मजा नहीं आता. इट्स अ प्रोसेस. खुद ही आप एंजॉय करना है आपको. और जितना उसको पढ़ोगे ना, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. हर दिन, हर बार जितनी बार पढ़ो, ये श्लोक अभी पढ़ो, दूसरे टाइम आपको अलग उसका अर्थ मिलने आएगा. कई बार मुझे मेरे गुरु थे डॉक्टर जैन, उन्होंने मुझे एक बार बताया, मैंने कहा गीता को सब इतना मानते हैं. इन आवर IIT also there is corporate leadership through Bhagavad Gita. I take lectures on that also. So गीता जो इतने सारे विद्वानों ने माना है उसको, तो जितने जल्दी आपने उसका साथ पकड़ा है ना, एक बार उस रास्ते पे आप चल पड़े हो ना, आपको पीछे रोकने वाला कोई नहीं है. तो ये आप एक बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे निकल पड़े हो. वो कैटरपिलर होता है ना, उसको कष्ट होता है, हमको लगता है यार मुझे नहीं पढ़ना है, कितनी बार रेजिस्टेंस आता है. बड़े लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वो एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं ना, फिर उनको लगता है कि इसमें सॉल्यूशन. तब तक स्टूडेंट फेज में वो समझ में नहीं आता. गीता पढ़नी है, संस्कृत में पढ़ना है, और भी आलस आता है. संस्कृत हमारी जननी है, कोई भाषाओं की जननी है. सारी भाषा इससे आई है, उपजी है. और अभी क्या ट्रेंड है, फॉरेन में इसको पढ़ा जाता है और हमारे यहाँ में खत्म हो रहा है. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसको करना है, आगे बढ़ना है. इसको अबाउट लीडरशिप. लीडरशिप ओनली नॉट अबाउट लीडिंग अदर्स, इट इज अबाउट लीडिंग सेल्फ. रियलाइजिंग अबाउट योर ड्यूटीज. मैं इस धरती पे आया हूँ. सी वी आर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. और हर एक का जो अस्तित्व है वो अपने आप में यूनिक है. हम लोग किस घर में पैदा हो हमारे हाथ में है क्या? नहीं है. जब हम बोलते हैं ना, हम लोग जन्म लेते हैं. जीवन क्या है? जन्म. किस घर में जन्म लोगे आप? क्या आपके हाथ में है? Where am I to take the last breath? कुछ भी नहीं ना. मुझे कहाँ जन्म लेना है मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर. कहाँ मेरा आखिरी सांस है मेरा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है. सो हमारा कंट्रोल किसके ऊपर है? लाइफ इज योर जर्नी फ्रॉम योर फर्स्ट ब्रेथ टिल योर लास्ट ब्रेथ. इसको खूबसूरत बनाना ये हमारे पास है. Having said that, किस घर में पैदा होने इट्स नॉट आवर चॉइस. जो रिलेटिव्स हमको मिलते हैं ना, चाचा मामा ताया जी फूफा ब्रदर सिस्टर, वो बोनस हमको मिलते हैं. बोनस गिफ्ट है ना, वो उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है. लेकिन व्हाट इज आवर चॉइस? व्हाट वी चूज ऑन दिस अर्थ हमारे लाइफ में? आवर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स इज योर चॉइस. चूज इट वाइजली. बिकॉज एक दोस्त आपको बना भी सकता है, एक दोस्त. सो बी प्रूडेंट इन योर चॉइसेस. गीता के ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है. मैं आर्या भारत को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आई वुड लाइक टू कंडक्ट वन सेशन फॉर स्टूडेंट्स whenever it is possible, not for you, for myself, because it should be again my another journey of understanding life in much better way. So जब हम गीता की बात करते हैं, क्या क्या हमने सीखा? देखो आज अगेन टाइम की कमी, हम लोग को एग्जाम देने जाना है. यस, लेकिन इतना सोचना कि जो जो हमने सीखा है ना, पहली बात you learn
one beautiful law. Can I ask you to raise your two hands? दोनों हाथ. Now I'll tell you and you will repeat. आपने लीडरशिप की बात करी, अपनी जिंदगी की बात करी. हम क्या करेंगे? अगर मुझे जिंदगी में कामयाब होना है तो ये मेरी जिम्मेदारी है. अगर मुझे जिंदगी में कामयाब होना है तो ये मेरी जिम्मेदारी है. So everything is ये हमेशा याद में रखना. और ये जो भी आपको श्लोकास है ना, आपको यही बात बार याद दिला देंगे. I have two choice, either accept the situation or fight with the situation. If you have to fight with the situation, you have to fight with yourself. Rather than time management की बात करें, I don't have to waste my time on blaming others. इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ. No. Invest your time, take your time to correct things, take the control in your hand. So again, accept each and everything as your responsibility. उसके बाद, just think about your future. Focus on your future. Not on present, not on past, but future on your focus. Why I'm saying so? लोग तो बोलते present में रहो, और मैं कह रही हूँ फ्यूचर का देखो. I'm saying so because आज आप जो भी हो, किस वजह से हो? आपके पास्ट की वजह से. जो भी, मैंने बीकॉम इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने 12th में कॉमर्स लिया था. सिंपल एग्जाम्पल. साइंस पढ़ा मैंने 12th तक, इसलिए मैं साइंस स्ट्रीम लिया. तो यू हैव द जॉब्स ऑप्शंस. बट जो मैं मेरे पास्ट का है उसके वजह से मैं आज हूँ. मैंने मेरे हेल्थ का ध्यान दिया, इसलिए आज मैं बीमार हूँ. So whatever I am today, if I am fit, because I have invested in my health. So yes, so knowing this very well, so अगर मुझे future ठीक करना है, तब मुझे अब काम करना होगा. So I am saying future on your focus, but be in present. Yes, so अगर हमको future हमारा ठीक करना है, तो हमको past में उलझना नहीं. Past में अभी तक. So that is why I am saying this is today is the extra thing given by God कि आज से जिंदगी की नई शुरुआत करो. जो बीत गई वो बात गई, अब उसके ऊपर सोचना नहीं है. मुझे ये मिला है. This is the beautiful awakening you have got, the opportunity. उसके ऊपर काम करो. और अपने फ्यूचर को मुझे बनाना है, अच्छा बनाना है. देखो ताजमहल कितनी बार बना था? एक बार बना था. कितनी बार बना था मैंने? एक बार बना था. यस दर्शक, एक बार बना. ताजमहल हो, कोई भी चीज हो, 2 बार बनती है. पहले यहाँ, फिर रियलिटी में. मुझे लाइफ सुंदर बनानी है तो पहले मुझे कहाँ बनाना है? ब्लूप्रिंट कहाँ? यहाँ होनी चाहिए. समझे? ताजमहल बना तो एक ही बार, लेकिन कैसे बनेगा, क्या डिजाइन होगा? पहले यहाँ बनाइए. माइक बना तो एक बार बना होगा, फर्स्ट जब बना, लेकिन स्पीकर ऐसा होगा, ये लिखा ऐसा होगा. यहाँ बनेगा तब वो रियलिटी में आएगी. तो छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं. जिंदगी तो कितनी बड़ी है. तो जिंदगी के ब्लूप्रिंट के बारे में सोचना है. अब मैं क्या कर सकता हूँ? सो कीप योर एम हायर. इस दिशा में मुझे जाना है. एंड बी डिटरमिन्ड टू सक्सीड. बी डिटरमिन्ड. क्योंकि क्या होता है ना, दुनिया भर का रिसर्च है. चाहे आपके पास खूब सारा पैसा हो, चाहे आपके पास खूब सारा नॉलेज हो,
लेकिन जिसके पास आत्मविश्वास है वही बंदा आगे जा सकता है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। मतलब क्या, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, डेफिनेटली आई विल गो अहेड, आई विल प्रोग्रेस एंड सक्सीड। यस, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, अगेन ब्लेम गेम, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, पैसा होता तो शायद। ऐसा जरूरी नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखो अपनी शुरुआत कैसे की है। Now you correlate this with गीता। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछूंगी ये बातें आपने गीता के कौन से अध्याय में पढ़ी या जानी। यस, प्रॉमिस? यस। उसके बाद आपको मैं आज पॉइंट्स इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं मुझे मालूम है टाइम शॉर्ट है, एंड आई वांटेड टू गिव यू द बेस्ट व्हाट आई कैन थिंक आई शुड बी टॉकिंग टू यू। अनदर थिंग, गीता में प्यार की ममता की बातें होती है। कम्युनिकेशन बोला कि सबसे अच्छे से लो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस। गीता में एक श्लोक और भी है, आत्मा को रक्षा करो, पहले खुद की रक्षा करो। फ्लाइट में जाते हो ना, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हो तो पहले मास्क को लगाना है, आपको खुद को पहले सक्षम होना है। सो मैं बात कर रही थी कि आपको खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, जैसे भी हो। लव योरसेल्फ। जो खुद को प्यार करेगा वो औरों को प्यार करेगा। सेल्फ लव एंड सेल्फिश होना ये अलग चीजें हैं। सेल्फ लव मतलब इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी पानी की बोतल है ना, अगर मैं खोला मैंने पानी, उसको अगर धक्का लग गया किसी का, उसमें से क्या निकलेगा बाहर? पानी निकलेगा ना, चाय तो नहीं निकलेगी, कॉफी तो नहीं निकलेगी, जो उसके अंदर है वही चीज बाहर आएगी। सो गीता में सेल्फ लव के लिए इसलिए कहा है कि अगर आपके अंदर प्यार होगा, आपके अंदर करुणा होगी, ममता होगी, तो वही चीजें बाहर आएंगी। अहंकार होगा, दुष्टता होगी, वही चीजें बाहर आएंगी। तो उन चीजों को रोकना है, इसलिए खुद को प्यार करना है ताकि आप में पॉजिटिविटी बढ़ाए। आप उसके लिए करना। उसके बाद जब लीडर की बात हुई, हमारी भावनाएं, इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट। अब कृष्ण ने अर्जुन को गीता ऐसे समय पे बताई जब उसका पूरा इमोशनल टर्बुलेंट फेज में से वो जा रहा था। ये तो मेरे सारे अपने हैं, इनके साथ मैं कैसे लड़ूंगा? ये तो मेरे गुरु है, ये मेरा भाई है, ये मेरे ये है, ये तो मेरे सारे सगे हैं। मैडम ने आप बोला उनको सत्य के साथ रहना है, सच से डरना नहीं है, लीडर होके डरना है, तभी आप लीडर बनोगे। यस, तो सच का हमेशा साथ देना है। सच का साथ देना है तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेना है। भावनाओं के ऊपर नियंत्रण चाहिए आपकी, राइट? उसके बाद है आपको एक समझ में आता है कि जो आप सोचते हो वो आपके जिंदगी में होता है। जो आप जिंदगी में सोचते हो, हम बोल रहे हैं ना फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट में काम करो, तो जो जो आप सोचोगे वो जिंदगी में होगा। ये कभी ना कभी किसी ने सोचा कि मुझे अच्छे मार्ग पे चलना है, इसी का नतीजा है आप इस मार्ग पे। इवन स्मॉल सीड ऑफ एनी थॉट विल डेवलप इनटू अ बिग ट्री। ये खाली अच्छाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिंदगी आपको छोटी बड़ी कैसे बनानी है ये आपके ऊपर निर्भर है। जो सीड यहाँ डालोगे, अगर मैंने कहा कि ये सीड्स है, ये एप्पल का सीड है, ये ऑरेंज का सीड है, यस, मैंने एप्पल का सीड लिया और इसमें डाला जमीन में, उसको पानी वानी देते गई, पेड़ आएगा। तो पेड़ जब उगेगा तो क्या संतरे आएंगे उसके ऊपर? क्यों? एप्पल का सीड डाला ना, तो जो बोओगे, यस। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने
के लिए। लेकिन एक ही चीज आपको कहती हूँ मैं, ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी चीजें एक जगह हम तो सीखते जाएंगे, लेकिन गीता से सबसे बड़ी अगर जो सीख मिलती है हमें, तो वो है हमको गुरु चाहिए। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, गुरु बिना ज्ञान, विद्ये बिना मति नहीं, आणि गुरु बिना गति नहीं, मतलब प्रगति नहीं। आपको गुरु चाहिए। सो हमेशा गुरु आपको ऐसे चाहिए। यू ऑल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव गुरुज लाइक ऑल दिस, दीज आर ऑल मेंटर्स। इन्होंने सोचा कि आपको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब आप खुद चाहोगे। वो घोड़े को तालाब तक लेके जाया जा सकता है, पर पानी जबरदस्ती उसको नहीं पिला सकते। उसी प्रकार से आपको ये दिया है, ये ज्ञान का सागर आपके पास रखा हुआ है कि उसमें आपको डुबकी लगाना नहीं लगाना ये आपके ऊपर है। एंड लास्ट में आपको खाली एक दो चार चीजें बताती हूँ और उसके बाद मैं रुकूंगी। मैसेज देना है कि मैम उन लोग 140 को आके बाद में ले लेंगे, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए था। So please both of you all, Manish Yadav, he has successfully completed the Bhagavad Gita course, submitted the research paper, did the examination. Manish, please, and even Dheeraj, please. Great. आपकी सारी मनीषा Put your hands together. मनीष, धीरज, सबसे पहले आपको मिलने का था। अभी ये लोग एग्जाम के लिए जा रहे हैं and we are preparing ourselves for जिंदगी की एग्जाम। Yes, अभी तो जिंदगी के कई मकाम बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नाम भी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। Now I'm keeping that thing aside. Okay, now see, आपको जिंदगी में आगे तो बढ़ना है। अब जिंदगी में आगे बढ़ना है, गीता का आपने साथ लिया। ये जो 700 श्लोक है या जो भी 18 अध्याय है, आपके पास जिंदगी में हर दिन भगवान आपको 84,600 सेकंड्स देता है। उनमें से कुछ टाइम इसके लिए जरूर निकालिए। आपको रोज आप कपलेट्स 2 लाइन्स पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। हमने पढ़ लिया कि भाई हमने गीता पढ़ ली, उससे नहीं चलेगा। It has to be part of our daily ritual. You will not start your day unless and until you read some part of Gita. And यकीन मानिए वो आपके लिए जिंदगी का एक पॉजिटिव थॉट होगा। That will be your thought for the day and it will happen. You'll get the solution. Even if it is a problematic day, you'll get the solution. You can choose any line, you can pick any line. Every line will be a guidance. So इसके लिए आपने कमिटमेंट करनी है कि मुझे गीता का अध्याय मैंने किया। ये आपको you all are blessed। मैं आगे फिर से बार-बार यही कहूँगी कि आप लोग सच में you are all blessed। लोग सोचते हैं, आप लोग मैडम लोगों से पूछेंगे ना कि आपने गीता का अध्याय कब शुरू करा? Answer will be in the late 20s or maybe late 30s. I was also so fortunate because मैं रहती थी जहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग के स्कूल में भगवद गीता के श्लोक का कंपटीशन होता था। लेकिन हम लोग 18वां अध्याय 11वां एवढंच करायचो, बट एटलीस्ट उससे पहचान तो हो गई, लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? समय नहीं, बाकी पढ़ना है ना। असली काम की चीज तो ये है। सो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि रोज दिन भर में थोड़ा सा समय
निकालेंगे। जरूरी नहीं कि मुझे सुबह ही करना है, क्योंकि जब हम बंदिश लगा लेते हैं ना तो हमको हमारे और अंदर से रेजिस्टेंस आता है कि मुझे करना है, जबरदस्ती नहीं, मुझे ये करना है। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। कभी भी अपने मन को रोकने की कोशिश मत करना, कंट्रोल करना है लेकिन उसको रोकना नहीं, जबरदस्ती नहीं। ये मुझे जबरदस्ती काम करना है, उसको समझाना ये मेरे लिए अच्छा है इसलिए मुझे करना है। Always never be the you have to be master of your mind. माइंड को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। गीता में बहुत सारे, मैं अपने आप को बहुत कोशिश कर रही हूँ रोकने की, इतना कुछ है बताने के लिए, पर अगर मैं उसको सही टाइम नहीं दे पाऊंगी ना तो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। और ये चीजें ऐसी है ना कि कितना भी जाना है, कोई इतना गहरा सागर है, जितनी अंदर तक जाओगे उतना सुंदर मूर्ति पाओगे। आपको मैं अंत में यही कहती हूँ कि सारा जो आपके लाइफ का सक्सेस है, हम लोग बचपन में ABCD सीखते हैं ना, तो ये गीता आपकी जीवन की ABCD है कि जीवन में कामयाब कैसे होना है। सो आपको पहला ही उसमें मिलता है आस्क, ए से होता है आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। जहाँ से आपको जिंदगी में इंफॉर्मेशन मिले, मतलब गुरु चाहिए आपको, दोस्त चाहिए जो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे, सही गाइडेंस करेंगे। सो आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। दूसरा है बी से क्या है? बी से भाव, और बताइए बी से क्या हो सकता है? ए से मैंने बोल दिया आपको आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन, इसका एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बोल रही आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन कि आपको इंफॉर्मेशन पूछनी है कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, गुरु चाहिए आपको। कीप आस्किंग। गुरु छोटा बड़ा नहीं होता है, इवन छोटे बच्चे से भी आप सीख सकते हो। बी से क्या होता है? विश्वास हो गया, और बहुत सही कहा आपने, सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास। Yes, believe in yourself and be your best. मैं जो हूँ मैं अपना बेस्ट को करूँ, कंपेयर yourself। उससे आता है तीसरा लेटर सी। सी से क्या हो गया? सी से क्या हो गया? कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल और कंसंट्रेशन और कम्युनिकेशन, और सी से क्या हो सकता है? कंट्रोल योर माइंड। हम लोग गीता को माइंड में रख के बोल रहे हैं। सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जीवन में आपको लक्ष्य के लिए क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी, जो भी कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। यस, मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। चाहे अगर मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है उसके पीछे। मैं ये बीकॉम पढ़ रहा हूँ, मेरा गोल क्या है। मैं BA फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरा गोल क्या है। सो वो आपको आपके अंतिम उद्देश्य तक लेके जाएगा। उसके बाद है जी। डी से क्या आएगा? डिसिप्लिन। मैंने प्लीज और जाता है, डिसिप्लिन तो चाहिए। सो डिसिप्लिन आपका आचार, विचार और व्यवहार, तीनों क्षेत्र में आपको डिसिप्लिन चाहिए। आप कैसे बर्ताव कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, इट हैज टू बी डिसिप्लिन। यस, सो डिसिप्लिन तो चाहिए। और लास्ट लेटर है ई से है एफर्ट्स। ईगो को साइड पे रखना है, बहुत बड़ी बात। और बात ई से इमोशंस और एफर्ट्स और एक्सप्रेशंस और एफिशिएंसी। ये सारे जो है ना, ईगो में आपके एफर्ट्स से जो भी ये करोगे इसके ऊपर काम, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यस, यू हैव टू वर्क फॉर यस करेक्टली। ऑफ योर लाइफ एंड गीता में बहुत बहुत सारा है। लास्ट में आपको यही कहूंगी कि जितना भी आप सीखोगे गीता से, लास्ट में आई जस्ट कंक्लूड कि जस्ट रिमेंबर 3 P's।
मैडम ने अभी मार्केटिंग के बोले ना, प्रोडक्ट मिक्स, और हम लोग 4 P's सीखते हैं मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए वो सब करते हो। क्या क्या होता है मुझे बताओ? हाँ, प्लानिंग, P से है प्लानिंग, प्राइस, तीन हो गए, प्रोडक्ट, पीपल, you know 8 P's. Okay, so what are 8 P's? मैडम इतने एग्जाम देने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, they all are getting good marks. Okay, so जो भी आपने बोला ना, perfect. So लाइफ में भी आपको 3 P's हमेशा ध्यान में रखो। One is P से है पर्सनालिटी। योर पर्सनालिटी, इसमें यू कैन अप्लाई ऑल योर 8 P's। आपका प्राइस आपको बढ़ाना है, यू आर द प्रोडक्ट, सो आपको आपके पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। पर्सनालिटी के लिए गीता में जितने भी अध्याय दिए हैं, आप पर्सनालिटी के लिए मैं क्या क्या मेरे पास मैं लागू कर सकता हूँ अपने ऊपर, नोट डाउन करिए इसको। मेक अ जर्नल, जर्नल ऑफ लाइफ लेसन्स, और हर एक के लिए अलग होगा, हर एक के लिए अलग होगा, इसलिए बोल रही हूँ इसका हम एक लाइफ लेसन्स का जर्नल बनाएंगे कि मुझे अपने, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग है, यस, पर हमको अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस रखते हुए जो मेरे लिए बेस्ट है, जिससे मैं बेस्ट, जो मेरे में अच्छा बुरा जैसा है, उससे मुझे अपने व्यक्तित्व को निखारना है। यस, सो P से है आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के ऊपर काम करिए। दूसरा P है पीपल, यू हैव टू डेवलप पीपल स्किल्स। सो पीपल स्किल्स में आपका सारा आ गया, जिसमें जो जो आपने बोला, कम्युनिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन किसके साथ करोगे? लोगों के साथ, करेक्ट। सो पीपल स्किल्स, लीडरशिप, किसको लीड करोगे? लोगों को करना है। सो डेवलप पीपल स्किल एंड यू हैव टू बी अ गुड पर्सन योरसेल्फ, सो दैट आप लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट करें। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अगेन 3 P's। यू ऑलवेज विल हैव, यू ऑलवेज हैव टू स्पीक यूजिंग 3 P's। क्या? यू हैव टू बी पॉजिटिव। दूसरा, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ ऐप होता है। सो नेवर एवर एम फॉर परफेक्शन। इफ यू आर लिटिल बिट imperfect, that's okay. Yes, always be polite, humbleness, always be positive, always be polite, and always be aware of purpose. Always be aware of my purpose. अगर मैं किसी को, अगर मम्मी आपको डांटती है, उसको मालूम है she can't be polite and positive, अगर आपको करेक्शन करना है, she knows her purpose. So जो भी आप कर रहे हो, उसके पीछे आपका पर्पस क्या है, उसके लिए आपने ध्यान में रखना है। So P है what? Positive, polite and ये 3 चीजें रखनी है। और लास्ट में जो मैंने ये 3P के बारे में बात करी थी मैं, एक है आपका पर्सनालिटी, आपका पीपल स्किल, और तीसरा है परफॉर्मेंस। तो लाइफ इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। Always try to apply those A, B, C, D, E to excel your efficiency. आपका परफॉर्मेंस जो भी है, आपको हमेशा बढ़ाना है, because you are the product of your performance at every given point of time. Always remember that. और yes, जिंदगी को हमेशा आपको खूबसूरत बनाना ही है। सफलता हर एक के लिए उसकी परिभाषा अलग अलग है, लेकिन कहते हैं ना, हम लोग सोचते हैं पता नहीं मुझे कामयाबी चाहिए, किसी को स्पिरिचुअलिटी के विषय में कामयाबी चाहिए, किसी को बिजनेस में कामयाबी चाहिए, किसी को एजुकेशन में कामयाबी चाहिए, किसी को रिश्ते में कामयाबी चाहिए, किसी को और किस चीज़ के लिए कामयाबी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, कामयाबी मिले ना मिले, कामयाबी मिले ना मिले, ये किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। कोशिश हमें करते रहना
चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So with that, wishing you all a very happy, successful and blessed life. Once again, I wholeheartedly express my gratitude for our dearest आर्या मैडम। जब मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ ना, मेरे मतलब I have so much respect for her कि मेरे पास मतलब शब्दों की कमी मुझे महसूस होती है हमेशा। So मैम, and wishing you all success and very very happy and keep on progressing and keep on excelling. Thank you so much. God bless. So here I would like to say, usually हम teachers को habit होती है last bench पे जो students बैठे हैं उनका कितना ध्यान है, क्योंकि सब students नहीं, but कुछ students they prefer to sit on the last bench because they don't want to pay attention. और आज पता नहीं संजोग ऐसे कि आज last bench में निमी मैडम को teacher बैठी हुई है। She is the IQAC coordinator and I'm very thankful to her that she is here with us. And continuously, madam, in your session I could see her. And she's clapping and she's enjoying. So always she's on the other side. But today being in this side, that said it all. Because teachers ko, we have this feeling. So I was very happy to see the reaction and the response of the students. You started with Om Purvas or Gayatri Mantra that got divinity here. And मैडम मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने बोला कि हमारा डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। और वो कैसे होगा, मैम ने और एक चीज़ बोली, कृष्ण भगवान अगर हमारे साथ है तो वो लड़े भी नहीं ना तो भी हमारी जीत है। तो और ABCD बता दिया, E बता दिया। सो दैट वाज रियली वंडरफुल मैडम, रियली वेरी ऑफ द रिकॉर्ड। मैडम नीलेश जो बोल रहे आर्या मैडम और शगुन मैडम को बोलना ना इनके 2 सेशंस रखने के लिए, ही इज टेलिंग मी ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, एंड नाउ आई नो यू आर नॉट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट्स। आई नो दैट यू आर, बिकॉज ही डिड नॉट जॉइन फॉर द सर्टिफिकेट। यही चीज आप मुझे बार बार बोलते थे, है ना? सो लेट अस वेट, बिकॉज यू आर नॉट वेटिंग। I really look at him. So I really want that we all should, sit patiently and listen to Om Prakash ji. Sir, 2 minute, 3 minute तो आपके शब्द, please sir. Please put your hands together. जय श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्ण। मंच पर आसीन माँ सरस्वती का स्वरूप, आप लोगों की आदर्श इस संस्था की निदेशक आर्यन लेडी, मेरी परम आदरणीय सुहासिनी आर्या जी, साक्षात जीवा पर सरस्वती विराजमान थी। आपने सुना यहाँ पर हमारी जो मुख्य अतिथि थी, यहाँ पर उन्होंने जो भी विचार आपके सामने रखे, यकीन मानिए बहुत ही ध्यान से मैं सुन रहा था और आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी प्रिंसिपल मैम, उन्होंने भी आपको जो अपने विचार दिए, अपना जो ज्ञान दिया। बच्चों, ये जो उम्र है आपकी, ये युवा अवस्था कही जाती है और युवा अवस्था में ही सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है कुछ करने की। आप आज गीता को पढ़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब आज से लगभग 5000 साल पहले, उससे भी ज्यादा, जब वेद व्यास जी ने लगभग 18 अध्याय वाले 700 श्लोकों की रचना की होगी, तो आप यकीन मानिए कि आज इतने वर्षों के बाद में भी हमारे लिए कितना जीवन में उपयोगी है। आप विचार करिए उस चीज को। जब आप गीता के पहले श्लोक पे जाते हैं, अभी मैम कह रही थी कि कर्ण जो थे, 2 लोग होने चाहिए, कृष्ण के जैसे और कर्ण के जैसे। तो शायद आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर कृष्ण रोए थे तो किसके मरने पर रोए थे? क्योंकि उनको पता था कि कर्ण से ज्यादा बलशाली धनुर्धर पूरे विश्व में या पूरे इतिहास में, पूरे सनातन धर्म में कहीं देखने को नहीं मिले। जब
आप सोचिए 5000 साल से पहले भी संजय जो है बैठ करके धृतराष्ट्र को पूरे कुरुक्षेत्र की कथा सुना। कितना बड़ा विज्ञान होगा उस समय। आज हम विज्ञान की बात करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी तक नहीं निकली कि इतने दूर बैठ करके संजय जो है वो धृतराष्ट्र को पूरी सेकेंड वाइज मतलब एक एक क्षण की कहानी, पूरी सत्य घटना प्रसारित करे। दूरदर्शन में इतना नहीं कर सकता, इंडिया टीवी भी नहीं कर सकता। तो आज हमें गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए उन मोमेंट पे जो हमने जिया, हमारे पूर्वजों ने जिया हुआ है। बच्चों मैं एक चीज बताऊंगा, कुरुक्षेत्र अभी चर्चा हो रही थी। कुरुक्षेत्र से क्या तात्पर्य है आप बताइए मुझे। कुरुक्षेत्र का क्या मतलब होता है बताइए। कोई एक बच्चा खड़े होकर के बताए मुझे कुरुक्षेत्र का। बोलिए बेटा, कुरुक्षेत्र का क्या मतलब? कुरुक्षेत्र से क्या अर्थ है? कुरु मतलब क्या? रणभूमि मतलब क्या युद्ध के लिए बनी थी? यस, कुरुक्षेत्र कुरु राजा के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत ही तपस्वी राजा हुआ था। वो तपभूमि थी। कुरुक्षेत्र एक अपवाद हो गया अभी, कुरुक्षेत्र रणभूमि यानी युद्ध के लिए। महाभारत मतलब जहां पे युद्ध हुआ, महाभारत में महान भारत। अब देखिए अपभ्रंश कहां से हो जाता है, कंफ्यूजन कहां से हो जाती है। महाभारत मतलब वहां पे जो लड़ाई की ही बातें हो, लेकिन महाभारत मतलब महान भारत। कुरुक्षेत्र यानी रणभूमि नहीं, कुरुक्षेत्र यानी कि राजा कुरु जो कि बहुत ही तपस्वी राजा थे, जिनकी तपभूमि थी, उसका नाम था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लोगों ने कहा अरे इतने वहां पे, आप यकीन मानिए करोड़ों लोगों की जाने के बाद में भी आज अगर आप कुरुक्षेत्र में चले जाइए तो वहां की मिट्टी लाल है, क्योंकि साइंटिफिक रीजन से गए हम। एक अपना ही एक ऐसा धर्म है या आप कहिए कि सनातन धर्म है जहां पर साइंटिफिक रीजन नहीं दिए जाते, वहां की मिट्टी में लौह पदार्थ बहुत ज्यादा है, साइंस से है। तो आज जो है ये हमें प्राउड होना चाहिए कि आज 18 अध्यायों को पढ़ने के बाद, 700 श्लोकों के पढ़ने के बाद में जब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय मुझे बताओ कि युद्ध की मानसिकता वाले, युद्ध की मनोभाव लेकर के रणभूमि यानी कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए पांडव के और कौरव के पुत्र क्या करते? ये टेक्नोलॉजी उस समय थी हमारे भारत में। तो बच्चों में ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए केवल इतनी ही बात कहूंगा, क्योंकि जब कोई बोलता है यकीन मानिए जितना हम सुनते हैं उसमें से 10% ही हमें याद रहता है और बाकी सब भूल जाता है। तो मेरी सारी बातें भूल जाएगा, लेकिन एक श्लोक याद रखना हमेशा, ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदा अध्ययन दक्षता एक चित्त महत्व इच्छा विद्यार्थी गुण पश्च। केवल 5 गुण जो है आप अपने जीवन में चरितार्थ कर लेना, ओम प्रकाश मिश्रा और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप केवल ज्ञान तृष्णा, हमेशा ज्ञान के प्रति भूख, गुरु निष्ठा, हमेशा गुरुओं का आदर करना, ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदा अध्ययन दक्षता। कंटिन्यू जैसे मैम आपके सामने बैठी हुई है, कितनी डिग्री बोलते बोलते मैम को थकावट लग रही थी, लेकिन मुझे जो साथ आता यहाँ पर चलिए ठीक है। गुरु निष्ठा सदा अध्ययन दक्षता, सदा अध्ययन दक्षता, ये सदा अध्ययन दक्ष थी इसलिए ये डिग्री उन्होंने हासिल की। सदा अध्ययन दक्षता एक चित्त यानी कांस्टेंट, मैं बता रही थी कांस्टेंट के ऊपर, सी फॉर कांस्टेंट, एक चित्त महत्व इच्छा, आपका महत्व बिना महत्वाकांक्षा के आपका जीवन निरर्थक है। तो महत्व इच्छा विद्यार्थी गुण पश्च, 5 गुण जो है आप लोग अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए। और केजी मित्तल कॉलेज के विद्यार्थियों झूम कर आगे बढ़ो,
जोश दरिया से बढ़कर जवानी में है। चांद तारों को लाके दिखा दो ये जग, रोब इतना तो भारत के पानी में है। महाभारत मीन्स ये तो आज बड़ा टेक अवे था, वरना मैंने तो सुना था कि महाभारत नहीं पढ़ने का, घर पे महाभारत पढ़ेगी ना तो घर पे महाभारत हो जाएगी। तो मैंने तो जब ये सुना तो मुझे लगा क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसा लगता था कि पढ़ना है वो। पर आज अभी आज के बाद हमें कोई भी बोलेगा ना महाभारत नहीं पढ़ना है वरना घर पे महाभारत हो जाएगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे, महाभारत मीन्स महाभारत, तो वो तो पढ़ना ही है। सो सर बहुत ही सुंदर आपने बताया। अभी इसको आगे लेके जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम बिल्कुल भी सर्टिफिकेट के लिए कोर्स ज्वाइन भी नहीं किया था। हमें भगवान को और उनकी बताई गई बातों को समझना था, लेकिन ये कोर्स का एक भाग है तो हमें वो करना ही है। उसके पहले मैडम मैं आपको बोलूँगी, प्रिया मैडम और ओम प्रकाश मिश्रा जी मैडम को तो उनके गाइडेंस के अंदर हमने किया है। 46 students could successfully complete this course, which was a really big achievement. मित्तल कॉलेज डिग्री सेक्शन ऑर्गेनाइज किया, उसके अलावा मित्तल कॉलेज जूनियर, मित्तल कॉलेज SFC, भारत विकास परिषद, MPP वालिया कॉलेज, बाल भारती कॉलेज, SNDT कॉलेज और निर्मला कॉलेज, ये सब हमारे साथ जुड़े। तो ये भी एक हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम सब मिलके इसको आगे लेके गए। बहुत सारे कोर्सेज से मैडम सब लोग जुड़े। जूनियर कॉलेज कॉमर्स, BCom, BA, SFC से बैंक, BSc IT, BSc CS, NGO से कुछ लोग जुड़े और एक कंपनी सेक्रेटरी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी हमारे साथ जुड़े। तो हम बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हमने एक कोलैबोरेशन कर लिया है। हमेशा हम साथ रहने वाले हैं। आज हमारा कोई ये एंड नहीं है, भले ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे सेरेमनी का एंड होगा, लेकिन हमारा लर्निंग का, हमारा रिलेशनशिप का एंड नहीं होगा। सो दिस वाज व्हाट वी वांटेड टू शेयर विद यू। हमने एक वीडियो बनाया है, इट इज़ जस्ट 3 और 4 मिनट्स लॉन्ग। और हमने नहीं, एक्चुअली मैंने ये बोलना चाहिए कि हमारा एक पार्टिसिपेंट विशाल प्रजापति, वो हमारा पार्टिसिपेंट भी था और उसने जॉब करता है, नाइट शिफ्ट करता है और उस सब में से टाइम निकाल के उसने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया है। और मैडम ये मैं भूल ना जाऊँ उसके पहले, सरस्वती माता को हमने सच में नमन करना चाहिए। आज तो सबके मुख से सरस्वती माता ही हमें दर्शन दे रही है। और मैं बोलना चाहूँगी कि वो दूसरे कॉलेज से आती है, वालिया कॉलेज से, और उसके घर पे एक मिसहैपनिंग हुआ है कल, एक भाई का कुछ एक्सीडेंट वगैरह। तो उसने मुझे बोला था कि आर्या मैडम आपको भी सबको मुझे बोलना है क्या, कि वो मुझे बोलती थी कि मैं ना शंकर भगवान बनी हूँ, पास्ट में ये सब बनी हूँ, तो मुझे इसमें भी कुछ करना है। तो आई थॉट ऑफ हर, और मैंने उसको फ़ोन किया तो मैंने बोला किधर है, तो बोला हॉस्पिटल में हूँ। एंड देन आई टोल्ड हर कि तो फिर रहने दे रही, यू आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। थोड़ी देर के बाद में फ़ोन आया, नहीं मेरे पापा ने बोला है कि सरस्वती माता बनने का मौका मिल रहा है ना, तो वो कभी नहीं छोड़ना है। वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में सरस्वती माता इधर बनने वाली है। हमारे वीडियो बनाने वाले विशाल को भी थैंक यू। और आप अभी वीडियो में जो गाना सुनेंगे, भगवद गीता की आरती सुनेंगे, और जो पहले सुनी भी है वो हमारी पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन वो हमारी लता मंगेशकर है, उसने गाया है। तो हम वो वीडियो के लिए प्लीज, उसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको हम इधर रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज। नेक्स्ट इज हर्ष गुप्ता, गुफरान खान, पुट योर हैंड्स टुगेदर। Next is Sachin Kasbe. I have to tell you again and again, put your hands together. Next is Roshni Makwana. Come on.
मिश्रा, मैडम पूछ रहे अनुभव कैसा रहा अनुभव। नेक्स्ट इज नितिन जायसवाल, कम ऑन। मैडम मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करूंगी और आपको बोलना चाहूंगी कि दो हमारे सीनियर मेंबर्स एनजीओ के भारत विकास परिषद जिनके साथ हमारा कॉलेज जुड़ा हुआ है, मैडम ने कुछ बात किया था और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया 100% अटेंडेंस के साथ। दो हमारे साथ सीनियर मेंबर्स है, उसमें से एक जन को तो पैर में लगा था, शी मेट विद एन एक्सीडेंट। देन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड द डॉक्टर वाज कैन आई गो फॉर भगवद गीता कोर्स। So and one day she had to attend online, WhatsApp वीडियो थ्रू आउट चालू रखा, एक्सरे के लिए घर पे कोई डॉक्टर है तभी भी वीडियो चालू था and she attended the session. So two senior members, we were very blessed to have them and they are blessing also. Please, madam. Resham madam, please. That's the dedication. Yeah. Nidhi Jaiswal. Nidhi Jaiswal. Next is Ankita Vishwakarma. हमारी अच्छा, she's from our college. Yeah, come. Yes. Next is Rupali Naikware. अरे कुछ वेट कर रहा सब है। मैडम की एनर्जी देखो। अच्छा कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहते हैं हम लोग देखो जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे भगवद गीता में तो हम लोग आने चाहे हम लोग कितना दिक्कत हो रहा सोचते इतना दिन किसी को हो या ना मुझे होता था, मैं बोलती इतना टाइम वेस्ट है ये सब क्या, पर आज मुझे इसका मतलब आज सर्टिफिकेट मिला तो सबको अच्छा लगता है। ऐसा कोई है जिसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा तो लगता ही ना सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो इसलिए बोलना चाहूंगी रब हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलने समंदर भी आएगा, थक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मजा भी आएगा जैसे आज हम सभी पा रहे हैं। Very nice. Next is Rupali. हाँ, सरस्वती गवाली बोलना है। सब लोग को जय श्री कृष्णा। एक बार मेरे साथ सब लोग बोल दीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। सरस्वती, she's here. Okay, next is Sanika Shinde. How sweet. Everybody saying हरे कृष्णा, she saying राधे राधे. अरे और मैडम हमको एक रेशम मैडम ने बोला था राधे राधे मीन्स राधे राह दे कृष्ण की हमको राह दे। हाँ, नेक्स्ट इज सानिका। या प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। समीधा। नेक्स्ट इज निशा गुप्ता। संजना सूर्यवंशी। हाँ, संजना सूर्यवंशी। सरस्वती माता किधर है? अच्छा कम। अंकिता उपाध्याय कम। नेक्स्ट इज नेहल भाटू। सरस्वती माता के लिए दो। नम्रता रुढ़ानी। कुसुम यादव। आज तो थकना ही नहीं है। फोरम शाह। अंकित झा। अमरजीत गुप्ता। She has to be
हाँ विशाल प्रजापति हमारा कैमरा संभालने वाले। क्लैप वन। आरती शर्मा, कंचन गुप्ता, अपने फ्रेंड्स का लेते रहना because you will like to cherish this throughout your life. प्रिया पासवान, रेखा यादव, come on, सब लोग अब जिनको सर्टिफिकेट्स मिल गए वो अपने सर्टिफिकेट्स देखने में ही बिजी है। क्लैप। युक्ता तलवी, प्रिंसी सिंह, अदिति, ओम प्रकाश मिश्रा, ओम प्रकाश जी की बेटी है अदिति। क्लैप फॉर हर। दूसरे का सर्टिफिकेट ना को लेके जा। भूमि विश्वकर्मा, अदिति, सुनील यादव, भूमि विश्वकर्मा वेरी शी। हाँ क्लैप फॉर हर। सुनील यादव, मैडम सुनील यादव के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते थे हमारे सेशंस में। शिवराम गुप्ता, महेंद्र परिहर, मनीषा गुप्ता, तालिया। जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं वो उसको एक कर दो, फ्लिप कर दो, डोंट सी द सर्टिफिकेट। अनुपम। नेक्स्ट इज मनीषा गुप्ता, अश्विनी भूले, बहुत सारे लीडर्स में से कृतिका सोमानी, वन मोर महेश प्रजापति, स्नेहा पाखरे, वेरी गुड एनर्जी। राशि सिंह, अमोल, अमोल, अजय कठेरिया, Okay, so something I'm really happy about today is we're doing this for the first time, and I thank our principal, Dr. Shagun Srivastava, madam, for this. We learn each day, madam. We have some of the other learnings from NAC. This time we understood that we should motivate and keep appreciating every good work happening around. तो हमारे कुछ awards है जो हम फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, that is because of you, madam. Thank you very much. और इसमें इतनी तालियां बजाना क्योंकि इसने जो काम किया है उसके मतलब उसके बिना शायद मैं इतना सारा मैनेज नहीं कर पाती. So this is Best Leader Award. Can you guess? Yes. I wanted to say this. Take it back. I say it again. It is Nilesh Kamadi. Thank you very much. Best Leader Award, and truly a best leader with dedication, with commitment. He has done the work.
थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा। And he is in TY BCom, madam. And he teaches accountancy to his friends. He is the general secretary of our college. And he is always behind me. Ma'am, अभी next क्या करना है? Ma'am, what next? Ma'am, what next? That's Nilesh. Next is one more leadership award. Can you guess? Aditi. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा के सामने ये award लेने आ रही है. And she truly deserves it. Silent worker keeps working. And एक चीज दिमाग में है, बेटी किसकी है? Leadership award goes to Aditi. मैं रिक्वेस्ट मैडम आपको रिक्वेस्ट करूंगी, शकुन मैडम को भी यहाँ पे हम बुलाते हैं आपके साथ फोटो लेने के लिए. प्लीज बी हियर. This will be photograph हो गया? Yes. This will be incomplete without clap for her. Next appreciation letter is for और हमारी लता मंगेशकर. एक सबसे बड़ा रह गया है एप्रिशिएशन वाला, वो किसको जाना है? So मैडम के लिए जोरदार ताली. Congratulations in your book. उन्होंने हमें गोटा लगाया, हमारे अपने हम लोग अंदर अंदर पहचाने भी जाके यार उनके बातें को और बहुत कुछ हमें भी आपसे सीखने मिला है. बस खूब दे मैडम. That's true, that's true. जब मैं वीडियो देख रही थी मुझे लगा था मैं क्यों दी थी उसको. ब्यूटीफुल एंड बहुत सुंदर प्रोग्राम है ये. और इसको जो है ना, जो आप लोग इसमें एफर्ट्स डाले उसको जारी रखिएगा. Yes. और मिस करते हैं इधर क्लास 12 बजते हैं तो हम लोग को एक दूसरे की याद आ जाती है. हाँ पक्का पक्का. और वैसे भी हमारे मैडम 3 जन का रिक्वेस्ट है, they want to share their feedback. What was उनका अनुभव क्या था, है ना? Yes. तो आप प्रार्थना से बोलिए और फिर आपका एक्सपीरियंस. मैडम is that okay? 3. हाँ. हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतनी शक्ति दो कि हम इस दुख का भी प्रसन्नता के सामना कर सकें. प्रसन्नता से भगवत गीता कहती है परमात्मा की भक्ति से आत्मिक बल मिलता है. भगवान श्री कृष्ण विपत्तियों को देखकर मुस्कुराते थे. संसार के सभी महापुरुषों ने ही संसार के हर बात में हंसी और मुस्कुराने का बहाना ढूंढा. हमें भी इसी तरह संसार में रहते हुए की कला गीता सिखाती है. गीता हमें कैसे सिखाती है? यह भी हम जब एक नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक निर्देशिका पुस्तिका मिलती है जिसे हम पढ़कर यह समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और इसे कैसे यूज करना चाहिए. इसी तरह हमारे जीवन में भी गीता एक निर्देशिका पुस्तिका की तरह ही है. हमें उसे इसी तरह ध्यान से पढ़ के हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए और हमें किस तरह के कर्म करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. हमें संसार में रहते हुए ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. इसी नहीं बताना चाहूँगी. एक राजा था, वो अपने घोड़े के साथ कहीं जा रहा था बैठकर. बहुत दूर जाने के बाद घोड़ा बहुत थक गया था तो उसे लगा इसको पानी पिलाना चाहिए. उसने इधर उधर पानी खोजा, पानी सामने कुएं में दिखा उसे पानी वाला है तो वो गया वहाँ पर. उसने कहा क्या मेरे घोड़ा को थोड़ा पानी दे दोगे? तो उसने कहा हाँ जरूर, घोड़े को ले आइए. तो वो घोड़ा जब आया तो वहाँ पर ठक 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 की आवाज़ आ रही थी. घोड़ा पानी पीने जा रहा था और वो डर के पीछे आ रहा था. तब उसने कहा कि आप ये ठक ठक की आवाज़ बंद कर दीजिए, मेरा घोड़ा इससे डर रहा है. तब उसने कहा अगर मैं ठक ठक की आवाज़ बंद कर दूंगा तो इसमें से पानी नहीं आएगा. तो इसी तरह हमें भी संसार में रहते हुए इस ठक ठक की आवाज़ के साथ भी हमें भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और हमें अपना कार्य को करते रहना चाहिए. Very nice. और कौन है? नितिन, where is he? He is very much here. तेरा अनुभव शेयर कर. उसका बेस्ट फ्रेंड है मैडम अनुभव. जय श्री कृष्ण सभी को. जितना ही बोलूँ उतना कम है सेशन के लिए. हम लोग जब फर्स्ट टाइम इधर आए थे हम लोग लगा बहुत बोर होगा,
लेक्चर्स, एक्टिविटी कुछ नहीं होने वाली। हम लोग के 3-4 फ्रेंड आए थे, सब चले गए, बस एक अनुभव रह गया एक में, हम 2 ही जन रह गए। बहुत सारी एक्टिविटी हुई, इतना अच्छा लगा। दर्शिका मैम बहुत मोटिवेटेड है, मोटिवेशन करने वाले। उनको देखा तो मेरी हम लोग की हिंदी की से जूनियर कॉलेज की मनीषा मैम सेम उनकी तरह ही सेम है। मैं इनको फर्स्ट डे में बोला कि आप एकदम उनकी तरह ही, मैं भी 11th को इधर ही था हमारा, वो भी ऐसे ही हमारे मोटिवेशन है। एक मेरे को भगवद गीता से एक मतलब बहुत सारी सीख है, मेरे को उसमें से 1-2 चीज़ें अच्छी लगी। जैसे कि हमारी ये लाइफ जो है ना एक पिच है, मतलब एक प्ले ग्राउंड में एक पिच है, उसमें हमें जितनी यही हमारे साल है जो हम लोग का ईयर है एजुकेशन का है, हम लोग इसी साल में जो करना है वो कर सकते हैं आगे की सफलता के लिए। तो हमें जो करना है इसी साल की मेहनत करना है। मैं आपको रियली ये बोलना चाहूँगी, मैडम प्लीज़ आप भी, ओम प्रकाश जी, ये लोग दोनों जन, एक दिन था मैम जब ये ऑडिटोरियम में कोई तो इवेंट था, सम कल्चरल इवेंट वाज गोइंग ऑन, उन लोग दोनों उधर जाके बैठे थे 12 बजे, दोनों भाग के बाहर आए और मुझे बोल रहे कि मैम जरा 5 मिनट में हमारा एक फ्रेंड उसमें पार्टिसिपेट किया है तो उसको हम खाली मोटिवेट करके फिर आ जाते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमने कभी भी कोई टाइमिंग का ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन रखा नहीं था। फिर वो लोग गए, उनको पता नहीं कुछ तो नहीं हमारा इधर 5 मिनट का मिस हो जाएगा, हम इधर आ जाते हैं करके। दिस वाज द यू नो एनर्जी दैट दे हैड ड्यूरिंग द सेशंस, बैग लेके लेक्चर में से भाग के दे यूज्ड टू कम and it was really wonderful sitting on the first bench. All of them, all the participants have been very good. कौन है और एक जन forum wants to say something? You said you want to, right? I know we are getting late. No. आज का दिन. Thank you, Shagun ma'am. Because of you, this course is started and we got opportunity to learn about I would like ऐसे courses सब जगह पे होंगे तो the youth will get a right path. We learn a lot from Varshika ma'am. Stress management, internal development, external development, stability in life, so and so. The journey has begun to reach the ultimate destination. So I'm very thankful and grateful to my friend Varshika and Shagun ma'am and the college also, and of course Priya ma'am, sir. We are blessed to hear you today. Right. Thank you. Okay, one last. Anybody wants to share their anubhav or the end? Nilesh? Yes, last. Okay, fine. First of all, Jai Hind, all of you, respected ma'am and sir. जैसे हमें 4 तारीख को हमने स्टार्ट किया था सेशन और अभी एंड हो रहा है, तो इतने दिन में पता भी नहीं चला कब पता शुरू के कब खत्म हो गए। जैसे सुख के पल जल्दी जाते हैं, दुख के पल कम रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने सीखा कि जैसे मैम ने जब श्री कृष्णा वो जो रथ को बीच में ले गया थे, बट मुझे पता नहीं था क्यों ले गया थे, बट मैम ने बताया कि उनके जो सगे संबंधी है उनके बीच में ले गया था ताकि उनको समझे कि आपके सामने जो मारने के लिए आपको खड़े हो आपके सगे संबंधी है और उसके साथ आपको लड़ना है। मतलब वो असत्य और अधर्म की राह पे है तो आपका सत्य और धर्म के राह पर आपको चलना है। जैसे कुछ बातें सर ने कहा कि कुरुक्षेत्र का मतलब ये मुझे पता नहीं था कि कुरुक्षेत्र एक राजा का नाम है, मतलब तपस्वी है सॉरी। तो ऐसे एक और मैं यूनिट सीखा, सेकेंड नंबर यूनिट सिग्निफिकेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट। आज की लाइफ में उसकी बहुत महत्व जरूरी मतलब इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल के लिए हम लोग जिम करते हैं, बॉडीज बनाते हैं, इंटरनल के लिए हम लोग को ध्यान लगाना जरूरत है। जैसे ध्यान लगाएंगे तो हम लोग बहुत सी चीज़ें हम लोग सीख पाएंगे, कर पाएंगे, इमोशंस कर पाएंगे, उससे झगड़े कम होंगे और लाइफ अच्छी चलेगी और अच्छा चलेगा। और सभी मैम को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारे संस्कृति में मतलब एक कूड़ा का लिए उन्होंने कदम डाला है, तो कि सभी कॉलेज को करना चाहिए। बस मैम मुझे थोड़ा थैंक्स लगा। I told him also and I told Aditi also कि I want to hear you. आप दोनों को मुझे सुनना है। ये दोनों शान से सहमे से लीडर हैं, पर लीडर को अपने
भाषा से, अपने ज्ञान से लोगों के ऊपर प्रभाव डालना है, क्योंकि आप दोनों में वो गुण है। जब मैम ने आपको एज लीडर बतौर लीडर आपको चुना है, तो इसका मतलब आप में बाकी सारे वो गुण हैं। लेकिन जो गुण हमारे जो पास है, जो हमारे विचार है, वो अगर लोगों तक पहुंचाना है, कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला, he was a leader. Yes, thank you. आपके पास से मोटिवेट मैं सबसे पहले आर्य मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर मैं आज धन्यवाद नहीं दूंगी तो मुझे बहुत गिल्ट फील होगा, क्योंकि वो मुझे हमारे प्रोग्राम में FRD के प्रोग्राम में मिले थे, तो उनसे ऐसे मैं पूछ रही थी आपके कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि गीता के बारे में जो मॉर्निंग में हमारा 8 लोगों का ग्रुप है, हम गीता पढ़ते हैं, तो मुझे लगता था इससे और भी कुछ आगे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हमारा एक सेशन कोर्स होने वाला है, तो उन्होंने उनका मैसेज आया, मैंने तुरंत उनको रिप्लाई किया और दर्शिका मैडम ने हमको एक्सेप्ट किया कि हम लोग इतने बड़े स्टूडेंट के बीच में हम 2 थे, पर हमें पूरा मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा। पर जब हम एग्जाम का बात आ रही थी तो ऐसा लगता था अरे बाबा कब की पढ़ाई छोड़ी है, अभी कैसे एग्जाम होगा, और उसमें भी बहुत मजा आया। गीता से हमको पूर्ण समर्पण, मतलब अपने को कैसे समर्पित कर दे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा था। अगर वो एक पॉइंट हमने पकड़ लिया तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। जिस तरह एक बच्चा एक माँ की गोदी में होता है तो पूरा अपने को ढीला छोड़ देता है, उसको पता है मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, इस तरह हमने कृष्णा के हमको संभाल लेंगे और हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। जय श्री। थैंक यू दर्शिका मैडम, हमको इतनी अच्छी टीचर इतनी अच्छी मिली है कि हम हमेशा हम उनके साथ रहेंगे, उनके पास रहेंगे, उनके दिलों में रहेंगे। नारायण नारायण। हमने ये सेशन से बहुत कुछ सीखा है, स्टेबिलिटी स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, तो ये सब सीखने में हम आगे अपनी ज़िंदगी में ये सब अपनाएंगे और ये सब कुछ संभव हुआ है बचपन की वजह से। मतलब एक सेशन इतने अच्छे से समझाया है कि सीधा ऐसा दिमाग में बैठ गया कि अब गीता पढ़ना है और गीता सीखना है और भी आगे बताना है सबको। और थैंक यू शर्मा मैम, ये मतलब आगे हमारे कॉलेज में स्टार्ट करने के लिए, और थैंक यू आर्या मैम और थैंक यू पापा। तो मुझे वोट ऑफ थैंक्स आ गया है, तो मुझे लग रहा है अभी इन लोगों को कभी नेक्स्ट मिलेंगे, पर हम मिलते रहेंगे। तो एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, जाने के पहले हम एक व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने शर्मा मैडम का परमिशन लिया है, मैडम वी आर प्लानिंग टू कम अप विद अ न्यू व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें हम वी प्लान व्हाट टू डू। मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ है कि रोज हम एक श्लोक उसमें पोस्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे, उस बहाने हम जुड़े हुए रहेंगे। लेट्स सी वी कैन प्लान समथिंग एल्स आल्सो, पर इसमें आप खाली हाथ ऊपर करके बता सकते हैं कौन वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहेगा और हमारे साथ। हाँ, आई वाज डूइंग दिस। ओह माय गॉड, ओह ग्रेट। तो दिस वाज वन अनाउंसमेंट मैडम, बिकॉज़ ये वोट ऑफ यस, सो फाइनली आई गो टू वोट ऑफ थैंक्स। मैडम मुझे आप खड़े हो तो ये लग रहा है थोड़ा नहीं प्लीज। बट रियली मतलब जब मैं आई ना, सो एक्चुअली इट वाज लाइक यू नो, मतलब मुझे था कि पता नहीं कॉलेज के स्टूडेंट आपको किस तरह से इस कोर्स को लेंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और दर्शिका मैडम ने बहुत बढ़िया से हमको मोटिवेट किया है, बिकॉज इतनी बार हम लोग लेके मतलब जाते हैं ना, बच्चों से जब बात करते तो उनका एक बहुत एडमेंट होती कि थॉट प्रोसेस के लिए तो नहीं ये करना, उनको मोटिवेट करना इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग टास्क। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि एक एक बच्चा वो सीरियसली जुड़ा है, जिसने भी मतलब ये किया है सर्टिफिकेट के लिए नहीं किया है, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम योर बिहेवियर, सो इट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट टू यू। ओके मैडम, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगी। ओम प्रकाश जी, मुझे बहुत खुशी है आप यहाँ पे हो, नॉट फॉर द कैमरा बट यू एज अ पर्सन। तो मुझे बोला है मैम
इफ आई एम नॉट रॉन्ग नितिन ने मुझे ये बोला था, सबके बारे में मैं कुछ ना कुछ बोल सकती हूँ. इट विल बी वेरी रॉन्ग फॉर मी टू एक्चुअली पिन पॉइंट समबडी एंड से, बट अभी इतनी सारी चीजें फ्लैश हो रही है, मैं थोड़ी सी बातें बोलूँगी. एक्चुअली मैंने जो कोर्स समझा पहले NEP के द्वारा, सब मैं गवर्नमेंट के पोर्टल में गई, बहुत कुछ किया, तो उसमें समझ में आया कि थियोरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है. यू कैन गिव असाइनमेंट्स, उसका भी टाइम गिना जाता है. तो मैंने उनको बोला कि आप लोग को बहुत तकलीफ होती होगी दूसरे कॉलेज से आना, ये सब. तो मैंने बोला एक काम करेंगे, हम थियोरी तो रखेंगे, थोड़ा असाइनमेंट का भी आर्ट्स हम लेंगे. तो ये नितिन, बहुत सारे बच्चे मेरे को आके बोल रहे मैम ऐसा आप बिल्कुल मत करना, सेशंस का टाइम असाइनमेंट मत डालना, उसको अलग गिनना, हमें हमारे 30 आवर्स के सेशंस कम नहीं करना है. एंड दैट गिव मी एनर्जी. तो मुझे उनको मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं थी, दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड. उनके पेरेंट्स को बड़ा थैंक यू है कि उनको ऐसा अपब्रिंगिंग दिया है. सो प्लीज गो होम एंड कन्वे माय थैंक यू टू देम. Okay, and last day I remember Sanjana coming to me and one layer of water in her eyes. मैम ये लास्ट डे मत बोलो, वी आर नॉट हैप्पी, ये लास्ट डे आप बोल रहे हो उनको, नहीं वी आर नॉट हैप्पी विद दिस डे करके. तो ऐसा हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है. हम क्रिकेट खेले हैं मैम, एक भी सेशन खाली बैठ के नहीं किया है. वी हैड एक्टिविटीज, क्रिकेट मैच, व्हाट नॉट इन द सेशंस, and I got support from every one of you all, and I'm going to miss you all, but we are connected. Yes, so now a formal vote of thanks coming to the end of this course and ceremony, but not to our relationship as I've already mentioned. और हमारा सीखना तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हमने सिर्फ आचमन दिया है. कृष्ण भगवान को जानना वो 30 आवर्स का काम नहीं है, क्योंकि महाभारत क्या है, महान भारत. तो महान भारत, वो महाभारत, वो कृष्ण, उनका भगवत गीता, ये सब समझना 30 आवर्स में इट्स नॉट पॉसिबल. पर हमने आचमन किया है, हम कंटिन्यू करेंगे. इन द फर्स्ट प्लेस आई बाउ माय हेड इन ग्रैटिट्यूड टू ईश्वर फॉर शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स एंड बीइंग द रीजन बिहाइंड दिस कोर्स. मैं कृष्ण भगवान को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उनका अगर नजर नहीं है हमारे पे तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो उनका हमारे पे नजर पड़ा है, तो उनको बड़ा थैंक यू. और हमें वो बोलना ही चाहिए, थैंक यू कृष्ण भगवान कि हमारे ऊपर आपने ये ब्लेसिंग किया. मैं अगर ये यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी तो इट विल बी एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट. मैं मेरे गुरु जी के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये सीखा है इन माई एकेडमिक्स ऑल्सो कि हम जो जहाँ से लेते हैं उसको क्रेडिट देना ही चाहिए. रिसर्च में भी हमने वो सीखा. मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर मेरे गुरु जी मुझे सिलेबस और सिलेबस का कंटेंट नहीं देते तो मैं ये कोर्स नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे भी कृष्ण भगवान को समझना और उनकी भगवत गीता को समझना, मेरा भी वो ए है. आई स्टार्टेड फ्रॉम ए. बट मेरे गुरु जी, मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी, मैं सो जाती थी, वो रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाग के सिलेबस का कंटेंट हेल्प करते थे. और सुबह मैं जब भी कॉलेज आने के लिए निकलती थी तो मुझे बोलते थे भगवान के पास रखा है, आप वो ले लेना, वहाँ पे ये कंटेंट रेडी है. तो उनको मैं नमन किए बिना मेरा आज का ये और पूरा 30 आवर्स का मैं कंप्लीट नहीं कर सकती थी. आई थैंक हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड फॉर द सिलेबस दैट ही हैज गिवन. Deep sense of gratitude for our management was positively supported for all our endeavors. Heartfelt thanks to our director, Dr. Suhasini Arya Madam, who is pillar of strength. कुछ भी अच्छा काम है, she is always there. मैं यहाँ पे I will come here and I will say thanks to Shagun ma'am. मैं सच में बोल रही हूँ, ये आइडिया का इंसेप्शन यहाँ से था. और आपकी बात बहुत सही है कि हम बहुत सालों से मैडम ये करते थे. इनफैक्ट हमारे बैंक में बेस्ट प्रैक्टिसेस करके है, तो उसमें भी हम लिखते थे इंटरनल डेवलपमेंट, और हम फोकस भी करते थे हर लास्ट 10 मिनट्स लेक्चर्स के बाद 1-1 बजे तक भगवत गीता के बारे में बात करना. ममता मैडम भजन करते थे, हर एक इसका ये सब हम करते थे, किया है. लेकिन उसी चीज को एक वैल्यू एडेड कोर्स का रूप देना, वो आइडिया यहाँ से आया है, और मुझे बोलना ही चाहिए. मैडम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. भगवान कृष्ण ने वो आपकी बात नोट कर ली है. यस. Deeply felt gratitude for our chief guest, respected Mrs. Priya Sawant Madam, for her divine presence and divine address to our students, to our participants. Even I was a student at that time. मैडम आपके पास इतना ज्ञान भरा है कि हम सेशंस आगे रखना ही है मैडम. और हमने आज बहुत बड़ा टेक अवे लिया. प्लीज एक बार वापस से
याद है आपको? लास्ट एक बार हमारे क्या था? मैडम बोलो क्या था? अगर मुझे कामयाब होना है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात हमने सीखी, ये हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ओम प्रकाश मिश्रा जी। सर आपने तो एक मेरे दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया, माँ भारत मीन्स महान भारत। ये तो मुझे आई कैन टेल यू, भारत माता की रियली वंडरफुल कि महाभारत जो सही मायने में सीखेगा तो हमारा भारत महान बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत सुंदर सर। मैं ममता मैडम को थैंक यू नहीं बोलूंगी तो कैसे भी होगा। सो आई रियली थैंक प्रोफेसर ममता बलवंती मैडम फॉर हर कांस्टेंट सपोर्ट। शगुन मैम मैं यहाँ पे मेंशन इसलिए करना चाहती हूँ, उनका है ना कोई कैश ऐसा प्रमोशन ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे वो एक कोर्स बताएंगे कि मैंने किया है तो उनको मार्क्स मिलेगा। दैट इज अनकंडीशनल सपोर्ट दैट शी हैज गिवन एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हैव अ सपोर्टर लाइक यू। All the teachers and non-teaching staff, I thank them। और एक साइलेंट वर्कर यहाँ पे खड़ा है, ढूंढ लो। जेम ऑफ अ पर्सन। रेशम मैडम इधर है, मैडम उधर क्यों उधर है? He's here। क्यों? एक इंसान ऐसा, बहुत सारे लोग होते हैं पर मैंने यहाँ पे एक जन को खोजा है। काम करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, कोई थैंक यू का भी वेट नहीं करेंगे और हम इधर आते उसके पहले तैयारी वो कर लेते हैं। विकास सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाउ कैन आई नॉट मेंशन अबाउट माय स्टूडेंट वॉलंटियर्स स्प्रेड हियर एंड देयर। मैं आके सीधा सेशन स्टार्ट कर दी थी। सरस्वती माता को ऊपर लाना, मतलब उनको ऊपर, वो हमें ऊपर लेके जाते हैं बट उनकी छवि लाना, वहां से लेके एंड तक एवरीथिंग you all have taken care of। सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगी but please accept my thankfulness towards you all। yes, so you all have been wonderful। next is participants। आपके बिना तो ये कोर्स पॉसिबल ही नहीं था। look at the smile that Sanjana and Sanika and everybody is having on their face। so a big thank you to all of you all for your dedication, commitment। आप already motivated थे, आप already संस्कारी थे, आप ऑलरेडी सही रास्ते पे थे। हम थोड़ा आगे चले और चलते रहेंगे। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थैंक ईच एंड एवरीवन हु हैज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बीन with this course, with this college, with this good work। I thank everyone। and वापस से कृष्ण भगवान से स्टार्ट किया और कृष्ण भगवान से एंड करते, ओम से स्टार्ट करते, ओम से एंड करते। चलो हमारी प्रार्थना हमेशा की बोल लेते हैं, देवी और दी एंड। चलो क्या था? ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलो प्रभु श्री राम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। Shakul ma'am wanted to have take a minute and I'll take this opportunity to thank सभी को धन्यवाद दिल से, क्योंकि इस प्रोग्राम को अगर सक्सेस मिला है तो वो आप सबके पार्टिसिपेशन से मिला है। नहीं तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। आप सबने जुड़कर इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस गीता कोर्स को एक नया मोड़ दिया, एक नया महत्व दिया और इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब, प्रिया मैडम, ओमकार सर, आप सब, ये एक तरह के हम सब सूत्रधार हैं। हम सब जो एक सूत्र से जुड़े हैं, है ना, हमारे जैसे एक मोती की माला होती है, हम सब धागे में एक एक मोती हैं जो उसमें पिरोए हुए हैं उस धागे में, और हम इस माला को और बड़ा और अच्छा और सुंदर रूप देंगे। मैं यही आकांक्षा, यही कामना करती हूँ। और
मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ प्रिया मैडम और सर के लिए कि इतना सब कुछ पाने के बाद वो सिर्फ इतनी सुंदरता से, इतने निर्मल हृदय से अपने व्यूज़ को, अपनी जो इनकी जो कहना चाहती हैं इतने सुंदर तरीके से आप सबके समक्ष रखती हैं। और ये जो एक चीज़ सीखने वाली हो यही है कि हम सबको इसी तरह से हम्बल रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? ह्यूमिलिटी, विच वी ऑल शुड हैव। हम सब जो भी हमारा है वो सब ऊपर वाले की देन है। हमने बिना उनके कृपा की और बिना उनकी शक्ति कि हम कुछ भी नहीं पा सकते और हम कुछ नहीं हैं। तो ये अगर आप हमेशा अपने दिल में रखोगे तो कभी भी आपको कोई भी गिला शिकवा, कोई भी चीज़ कभी परेशान नहीं करेगी और हमेशा अपने आप में आप खुश रहोगे। और आपका व्यक्तित्व वो बताएगा, जैसे प्रिया मैडम का व्यक्तित्व दर्शाता है। जब मैं उन्हें देखती हूँ दिल खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, इतनी पॉजिटिव, इतनी प्रेजेंट, इतनी हंसमुख हमेशा, तो किसी से इस तरह से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो खाली मैंने कोई शब्द भी आज उनसे शायद नहीं किया, कहा हेलो, और इतनी खुशी एक दूसरे को देख कर ही ना, दोनों के स्माइल हार्डली आई थिंक हमने ज़्यादा कुछ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा किया हो, आर्य मैडम से तो बहुत किया इंटरेक्ट, लेकिन मैंने तो शायद नहीं किया ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो फील जो अंदर से आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा हम उनको ग्राउंडेड रहना चाहिए। हमेशा कितनी भी ऊंचाई पे आप पहुँच जाओ, धरती पे रहना बहुत ज़रूरी है। सो धन्यवाद आप सबको इस कोर्स में इसको और बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच। मीनू मैडम ने प्रशांत भगवान जी को धराया है, तो वो हाँ, तो देखो हमने ये सीखा है मैडम, वो मुझे बोले कृष्ण भगवान लाए हैं, तो वो सभी लेके जाना और एक फोटो। Usually I'm not behind photos, but see I get a memories, एक फोटो। तो हम सब participants and the dignitaries here हम एक फोटो लेते हैं